بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آخر کیوں کے ساتھ میں ہوں قائم احتشام۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں رب نواز شاہ چوک میں، CC 141 ہے یہ، اور یہاں کے اگر حالات کی بات کریں تو یہاں کے خاص طور پر جو پارکس ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کرتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اس آبادی کی ایک ظاہری سی بات ہے، یہ ایک ایسی CC ہے جس میں آبادی کا ریشو جو ہے، آبادی کے تناسب جو ہے وہ زیادہ ہے، یہاں پر پاپولیشن زیادہ ہے۔ یہاں اس زیادہ آبادی والے اس CC کو جو ہے وہ جو پارکس دیے گئے ہیں وہ اس وقت بھوت بنگلے کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر لگے جھولے ٹوٹ چکے ہیں، اس کے بعد یہاں پر جو درخت ہیں ان کی پراپر جو ہے وہ دیکھ بھال نہیں کی جا رہی، ساتھ ہی جو پلاٹس گراسی پلاٹ یہاں پر بنائے گئے ہیں وہ بھی جنگل کا منظر جو ہے وہ ہمیں پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو دکھائے کہ یہاں پر جو جھولے لگے ہوئے ہیں وہ جھولے اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ یہاں پر یہ ظاہری سی بات ہے بچوں کے لیے ایک تفریح گاہ تھا، ایک کھیلنے کی جگہ تھی، بچے یہاں پر جو ہے وہ آ کر ظاہری سی بات ہے کھیلتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ واکنگ ٹریک بھی جو بنا ہے وہ واکنگ ٹریک بھی اس وقت جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہاں پر جو ہے وہ ایک کمرہ ہے، غالباً اس میں جو ہے وہ کوئی ٹیوب ویل کا سسٹم یا کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہوگا۔ یہ بھی اس وقت اپنی حالت جو ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ کس طرح یہ جو ہے وہ کھنڈرات کا ایک منظر یا کھنڈرات میں اس وقت جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے اس وسیع ایریے پر، اس علاقے کے بیچوں بیچ میں ایک پارک تو بنا دیا گیا۔ اس پارک پہ ظاہری سی بات ہے کہ بجٹ بھی آتا ہوگا، اس پارک پہ اخراجات بھی آئے ہوں گے، اس پارک کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ مالی بھی رکھے گئے ہوں گے، کیئر ٹیکر بھی یہاں پر رکھے گئے ہوں گے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر نہ کوئی کیئر ٹیکر ہے، نہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی سہولیات کا جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد خاص طور پر عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں انزائٹی کے، ڈپریشن کے کیسز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور یہ ختم تبھی ہوگی جب لوگ ایک کھلی ہوا میں، ایک فریش ایئر میں آ کر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ریلیکس کریں گے۔ ریلیکس ہی کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس طرح کے پارکس بنائے جاتے ہیں فریشمنٹ کے لیے، لیکن ان کا حال اب یہ ہے کہ وہ فریشمنٹ کم، ایک تفریح گاہ کم، بھوت بنگلہ اور کھنڈرات زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے یہاں کے جو اہل علاقہ ہے، جو لوگ ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے اور ان سے ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو تفریح گاہ یہاں پر بنائی گئی، یہ جو پارکس یہاں پر بنائے گئے، ان کے اجڑنے کی وجہ کیا تھی۔ یہاں پر لوگوں کی طرف بڑھیں گے اور ان سے جانیں گے وجوہات کا، کیونکہ کوئی پوچھے یا نہ پوچھے ہم کریں گے سوال آخر کیوں۔ دیکھیں ناظرین، اس وقت جو پارک کی صورتحال ہے یا جو اس وقت کے حالات ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کتوں کا، بلیوں کا جو ہے وہ راج ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت ہم ایک پارک میں نہیں کھڑے بلکہ ایک بھوت بنگلے میں ہم کھڑے ہیں، اور یہ ایک جو ہے وہ بھوت بنگلے کا منظر جو ہے وہ ہمیں پیش کرتا نظر آتا ہے۔ یہاں پر ظاہری سی بات ہے واکنگ ٹریک پر بھی جو ہے وہ جھاڑیاں ہیں، جس وجہ سے نہ یہاں سے شہری جو ہے وہ گزر سکتے ہیں، نہ اپنی جو ہے وہ واک کر سکتے ہیں، مارننگ واک، اور نہ ظاہری سی بات ہے یہاں پر بچے جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری یہاں پر موجود ہیں، یہاں کے رہائشی موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ حالات کیوں بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ دن بدن یہ پارک اجڑتا جا رہا ہے، دن بدن اس کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی دیکھ بھال کرنے والے نہیں ہے؟ جی السلام علیکم سر، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کمپلین بہت زیادہ کی ہے، جا کے DG صاحب سے بھی کہا ہے، کوئی بات نہیں سن رہا۔ پارک کا ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ جو موٹر ہے نا اس کی، یہ خراب ہوئی ہے تقریباً 7-8 ماہ سے، تو اتنی کمپلین کی ہے، کوئی توجہ نہیں دے رہا، اس کی وجہ سے پانی نہیں لگ رہا ہے اس کو، تو ساری گھاس خراب ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارک کا حال، ادھر کتے وغیرہ پھر رہے ہیں، بلیاں پھر رہی ہیں، گیٹ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اپنی مدد آپ کام کیا، جو بھی کیا، لیکن کتنا کر سکتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر تو رات کو ظاہری سی بات ہے یا شام کے بعد یا دن کے غروب ہوتے ہی یہاں پر تو حالات ایسے ہوتے ہوں گے کہ آپ لوگ یہاں پر ادھر آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے، جو صورتحال ہے۔ بہت مشکل ہے جی، کوئی بھی نہیں آتا۔ بچوں کو ہم اندر رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی باہر سے آ جاتے ہیں،
इधर नशेई वगैरह आगे बैठ जाते हैं, नशा करते हैं, किस किस को रोका जाए। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है कि जब कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा तो फिर वो चीज़ जो है वो नशेइयों की भी ज़ाहिर सी बात है माजगा बन जाएगी। यहाँ पर नशेई आते हैं नशा वगैरह करते जी जी, बहुत ज़्यादा आते हैं जी। रात को कोई उधर बैठा होता है, कोई वो कॉर्नर पे बैठा होता है, ऐसे मज़ीद बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। देखते हैं ना पार्क में कोई भी नहीं है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो इधर हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है। ये तो फिर ये एक ऐसा एलिमेंट है कि यहाँ पर अगर 5 नशेई बैठे हैं, 10 बैठे हैं, वो नशा कर रहे हैं, वो आइस का है चाहे कुछ भी है, वो अगर नशा कर रहे हैं तो जो देखने वाले बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके माइंड उस तरह से नहीं खुले होते हैं, वो नई चीज़ को देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो भी उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, माइल होते हैं। तो ऐसे भी केसेस फिर हुए होंगे कि नशेइयों को देखते देखते नौजवान या जो है वो लोग नशे पे लग गए। जी जी बिल्कुल, बच्चे छोटे छोटे एज के हैं, 14-15 साल 18 साल के, जो इधर स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं। देखो देख काम हो रहा है ना सारा, तो इधर बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है ना। कोई बंदा इसकी देखभाल के लिए नहीं है। तो आप देखें, ये पार्क के ट्रैक देख लें, ये जो झूले लगे हुए हैं, ये एक एक पाँव पे खड़े हैं, गिरने वाले हैं, ठीक है ना, कभी भी गिर सकते हैं, जानी नुकसान बच्चों का हो सकता है। कितनी बार दिखाया है लेकिन कोई नहीं इसकी तरफ तवज्जो दे रहा ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, उसके साथ अभी आपने जिस तरह बात की है कि ये पार्क की हालात पर, इस पार्क की सूरत हाल पर, ये पार्क आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, आप लोगों की फ्रेशमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन यही पार्क अब आप लोगों के लिए दर्द सर बन चुका है। क्योंकि जब एक सोसाइटी में, मुआशरे में ख़वातीन के सामने, बच्चों के सामने, नौजवानों के सामने जो है वो गलत चीज़ें हो रही हैं, तो ये तो फिर मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए बैड एलिमेंट है। फिर इंतज़ामिया को कहें कि अगर आप इसकी सही तरीके से इसकी देखभाल नहीं कर सकते तो इसे बंद कर दें। जी बिल्कुल, यही हमने मुतअद्दिद बार ये रिक्वेस्ट की है, कितनी बार गए हैं, कोई बात ही नहीं सुनता। इससे तो ये तकरीबन 1 साल पहले ये मोहल्लेदार, ये भाई लोग हैं, इन्होंने पार्क को ना खुद संभाला हुआ था, ठीक है ना। तो लेकिन बात यह है कि जब पीछे से कोई देखभाल करने के लिए, कोई इधर गेट लगाने के लिए कोई फंड वगैरह नहीं है, ठीक है ना, लाइट्स बिल्कुल नहीं है, देखें ये टूटे पड़े हैं, ठीक है ना। तो रात को ये मगरिब के बाद इतना अंधेरा हो जाता है कि कोई पार्क में आता ही नहीं, ठीक है ना, डर ही लगता है ना इधर कोई। ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि आप लोगों ने अपनी तरफ से जो है वो कोई देखभाल के लिए जो है वो लोगों को कोई जिम्मेदारियां दी हुई हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कुछ बता सकते हैं? सर ये है कि टीम बनी हुई थी, 5-7 बंदों की थी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्क करते थे, लेकिन सहूलतें नहीं है तो फिर वो भी क्या करें, फंड ही नहीं है। अभी देखें ना, हमें सबसे पहले ये मोटर चाहिए पानी के लिए। अगर पानी चलता हो, थोड़ा सा फंड हो, ये गेट लग जाएं और इनको ताले वगैरह लग जाएं, तो फिर पार्क बच सकता है, बेहतर हो सकता है। यही चीज़ है, यही हाल सूरत हाल है कि अगर वहाँ पर गेट नस्ब किया जाए, अगर गेट वहाँ पर लगाया जाए, जो यहाँ पर वाटर पंप है उसको फंक्शनल किया जाए ताकि पानी पौधों को मिल सके, घास को मिल सके, जो घास है उसकी ग्रोथ हो, पौधों की ग्रोथ हो, साफ़ सफाई हो, तो ये चीज़ें बेहतर जा सकती हैं। लेकिन जब भी ज़ाहिर सी बात है इंतज़ामिया से बात की जाए या करदा धरदा लोगों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास फ़ंड नहीं है। अब हुकूमत से अगर इस बात पर की तरफ जाया जाए तो वो सबसे बड़ा गिला शिकवा यही करती है कि हम जो है वो इदारों को फ़ंड्स जारी करते हैं, इदारों को फ़ंड्स देने की वजह से जो है वो हमारे ऊपर जो है वो एक फ़ाइनेंशियली क्राइसिस है, हम इदारों की पूरी कर रहे हैं, हम इदारों को फ़ंड्स दे रहे हैं, लेकिन इदारों से अगर हम सवाल कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है सर कि अगर आप बार बार इदारों से ये जवाब सुनते हैं, उनकी तरफ से ये चीज़ आती है कि भाई हमारे पास तो फ़ंड ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये फिर ज़ाहिर सी बात है आप लोगों की जो सहूलत के लिए बनाया गया था, ये तो अब तो आपके लिए दर्द सर बन चुका है। सर अभी तो ये दर्द सर है ना, जो हालात जा रहे हैं ना, तो अगर 6 माह ऐसे ही गुजरे ना तो ये पार्क है ना, जो ये जंगल का मंजर पेश करेगा। फिर वो तो अभी भी तकरीबन कर रहा है, वो तो कर रहा है, लेकिन अभी तो हमें उम्मीद है ना कि इंशाल्लाह अगर कोशिश की तो दोबारा पार्क सही बेहतर जगह पे आएगा। मतलब बच्चे इधर दोबारा सैर के लिए आएंगे, बड़े आएंगे, ठीक है। अगर यही हालात रहे तो मज़ीद जानवर इधर आएंगे, ये बकरियां वगैरह या आप देख रहे हैं कुत्ते वगैरह, ठीक है। इसी तरह रात को जब ये
जंगल का मंजर पेश करेगा तो फिर इधर ज़ाहरा नशे भी ज़्यादा आएंगे। तो आपको पता है जो नशा करते हैं, इसी तरह जो हमारी आज की जनरेशन है, ज़ाहरा उनकी तरबियत ख़राब होगी, तो उनकी तरबियत ख़राब होगी तो काम ख़राब होगा। सी बात है, इससे तो बड़े मसाइल जो है वो जन्म लेंगे। ये इस तरफ जो है वो एक रूम है और तकरीबन है तो टूटा फूटा हुआ, लेकिन इसको ताला ज़रूर लगा हुआ है। अंदर कोई वाटर पंप है, क्या चीज़ रखी हुई है अंदर वैसे? सर इधर फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई छोटी मोटी चीज़ होगी पार्क की, वरना वैसे ही ताला लगा हुआ है। कोई चीज़, कोई प्रोग्राम हो तो इधर वो ना सामान वगैरह रख लेते हैं। अगर प्रोग्राम हो तो फिर तो पैसे लेने के लिए। अच्छा, ये भी ज़ाहिर सी बात, अभी एक जो चीज़ आप कोट कर रहे हैं और हमारे नाज़रीन को भी ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर जो फंक्शंस होते हैं किसी भी किस्म के हों, वो शादी ब्याह के हों या कोई भी फंक्शन हो, तो इसके जो है वो बाकायदा चार्ज किए जाते हैं पैसे। और वो ज़ाहिर सी बात है, अगर वही चार्ज किए गए पैसे ही यहाँ पर लगते और फंड्स ना आते तो हालात बहुत बेहतर होते। तो फिर जो पैसे चार्ज करते हैं या पैसे जो आप लोगों से लेते हैं, वो कोई भी फंक्शन हो, किसी भी किस्म का फंक्शन हो, तो वो फिर अपनी जेबों में डाल लेते हैं। सर ज़ाहरा वो तो महकमे में पास जाने हैं, इधर तो नहीं आने। अगर इधर आएँ, इधर लगें, हम तो यही चाहते हैं कि कमेटी बनाई जाए, इधर जो पैसे इकट्ठे हों इसी पार्क पे लगें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमारा पार्क बहुत खूबसूरत था, अब तो यहाँ पे ना माली आता है ना कोई और इसकी देखभाल है, तो इसी वजह से इसका ये हाल हुआ है। अगर पहले इब्तदा में कोई था यहाँ पर केयर टेकर जिसने जो है वो चीज़ें देखी हों, जिसने ये देखा हो कि अभी जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर हैं या चीज़ें चल रही हैं, और बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी गायब हो गए हों? नहीं, पहले तो माशाल्लाह बहुत बेहतर था पार्क। जैसे जैसे ये महकमे की नाअहली है, इस पर तवज्जो नहीं, वैसे वैसे ये पार्क जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। इससे इलाके को भी परेशानी है, बच्चों को भी, बड़ों को भी। पहले हमारे इधर मलक अदनान साहब हैं जो साहब चेयरमैन है, उन्होंने बहुत कोशिश की, बार बार महकमे को जगाया, उसके बावजूद भी उनकी आंखें नहीं खुली। फिर भी वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि शायद अल्लाह इनकी आंखें खोल दे, इनको होश आ जाए और हमारा पार्क जो है वो दोबारा बहाल हो जाए। उम्मीदें हैं वैसे, अगर उम्मीदों की देखो, जो उम्मीद तो इंशाल्लाह रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद से वाबस्ता होना चाहिए। अगर अल्लाह ने चाहा, इनको अल्लाह ने हदायत दी तो इंशाल्लाह ये पार्क अपनी जगह पे दोबारा आएगा। ज़रूर जी, अगर अल्लाह ने चाहा और अगर इनको अकल आई और इन्होंने मसले की नोयत को समझा तो हालात जो है वो ज़रूर बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे, और भी इस वक्त हमारे साथ जो है वो अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जो है वो इस वक्त हम बात करके जानेंगे कि इस वक्त जो है वो क्यों आखिरकार चीज़ें जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, ये जो बच्चे इस वक्त खड़े हुए हैं, ये आप देखें, अब ज़ाहिर सी बात है जिस तरह भाई वो बता रहे थे कि नशे के आदी लोग बैठकर जो है वो सारी सारी रात यहाँ पर नशा करते हैं। ये जो देखते हैं मासूम चेहरे, इनके जहनों में वो क्या तासुर जाता होगा, उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट जाता होगा। और ये फिर ज़ाहिर सी बात है कि ना चाहते हुए भी जब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, तो ये उस तरफ जो है वो माइल होते हैं। और इससे जो भी ज़ाहिर सी बात एक एलिमेंट है कि माशरे में, सोसाइटी में जो है वो एक जो नशेई अफराद हैं, नशावर चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। तो बेसिक जड़ तक पहुँचने की ज़रूरत है। पार्क और पार्क की तबाही और CC 141 की आवाम के इस वक्त जज्बात हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये जो पार्क की तबाही है, पार्क की खस्ता हाली है, ये सिर्फ मसला बच्चों के लिए नहीं है, नौजवानों के लिए नहीं है कि उनके बैठने की जगह नहीं है या उनके जो है वो यहाँ पर झूले लगे हुए हैं या उनके खेलने की जगह नहीं है, बल्कि ये मसला बुज़ुर्गों के लिए भी है। अमूमन जो है वो बुज़ुर्ग चाहते हैं कि वो एक फ़्रेश एयर में जो है वो वॉक करें, उनके लिए वॉकिंग ट्रैक बने हुए हों और वहाँ पर ताकि वो अपना जो है वो उनके जो वक्त है वो वहाँ पे गुजार के जो है वो थोड़े से फ़्रेश हो सकें। लेकिन बदकिस्मती है कि वो पार्क जो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, आवाम की रिफ़्रेशमेंट के लिए बनाया गया था, वही आवाम के लिए जो है वो इस वक्त तबाही की वजह बनता नज़र आ रहा है। हमारे साथ बुज़ुर्ग कुछ हैं इस एरिया के, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनसे हम बातचीत करके जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, कितनी तकलीफ़ होती है एक बुज़ुर्ग को इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तकरीबन पानी तकरीबन 1 साल तो पंप जेड़ा वा खराब आ। 1 साल हो गया? हाँ जी, बहुत पहला तो कोई जहाज तार ला के लै गया। अच्छा, नशा ही? नशे
ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਰ ਪਾਈ, ਚਲੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਰੇ ਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। अच्छा, उसमें ज़ाहिर सी बात है ये तो चीज़ें हैं, जिस तरह भी आप बता रहे थे कि पंप यहाँ का ख़राब होता है, फिर जो है वो ख़राब होने से पहले जो है वो नशेइयों की तरफ से तार भी उसकी उतार के ले गई जाए, तो कोई देखभाल करने वाला नहीं था, कोई इसको चेक करने वाला, कोई इसकी अपना रखवाली करने वाला, कोई केयर टेकर कोई बंदा नहीं हैगा इत्थे रखवाली करने वाला, कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं है। अच्छा, वो ज़ाहिर सी बात है, अभी ये भी एक एलिमेंट है, इस चीज़ पर भी हमें जो है वो बात ज़ाहिर सी बात है ज़रूर करने की ज़रूरत है। वो जो मोटर यहाँ पे लगी हुई थी, वाटर पम्प जो यहाँ पे लगा हुआ था, वो ठीक कराने के लिए लेकर गए हैं या वो अभी तक वहीं पर ही है? नहीं नहीं इत्थे पई है, आए ही नहीं, चेक करने नहीं आए हैं, चेक करने ही नहीं है? चेक करने नहीं आए हैगे। और जब यहाँ पर कोई तकरीब होती है या कोई फंक्शन होता है तब पहुँच जाते हैं? नहीं कोई भी नहीं होंदा। नहीं, वो ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ पे सिस्टम लगते हैं। उदों उदों गेड़े कढ़दे आ, अच्छा, अपनी पर्ची दिखाओ, हाँ जी, महकमे वाले अपनी पर्ची दिखाओ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा, यहाँ से यानी आप लोग अपने पल्ले से हाँ जी, खुद जो है वो उनको पैसे देते हैं कि यहाँ पर जो आकर वो सफाई करें, और उनकी तरफ से जो है वो यहाँ पर जो आते भी हैं तो वो सफाई भी नहीं करते पैसे लेने के बाद? हाँ पैसे ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਗਏ। बड़ा दुख होता होगा, ज़ाहिर सी बात है कि जो फ़राइज़ ਬੜਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। कोई उम्मीदें हैं कि कोई बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। वैसे लगता नहीं है मुझे, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ज़ाहिर सी बात है जी, जब बार बार इदारों से उम्मीदें वाबस्ता की जाएँ, जब बार बार इदारों से जो है वो तवक्कुआत वाबस्ता की जाएँ और इदारों की तरफ से ऐसा मायूस कुन रिस्पॉन्स सामने आए, तो फिर लोगों का भी जो है वो इदारों से एतमाद उठ जाता है, और लोग भी ज़ाहिर सी बात है फिर ये समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई हमारी एफ़र्ट्स जो हैं वो नाकाम हैं। खुदारा इदारों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, इदारों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये पार्क जो आवाम की सैर व तफरीह के लिए बनाए गए थे, इनको बहाल किया जाए। अब इस पार्क की आप सूरत हाल देखें तो यहाँ पर कोई करोड़ों का बजट नहीं लगता होगा। मैं ये समझता हूँ कि हज़ार में या लाखों में जो है ये चीज़ आप बेहतर कर सकते हैं, और हुकूमत के पास इतने वसाइल ज़रूर हैं कि वो लोगों को उनकी बुनियादी सहूलियात फराहम कर सके। क्या मुश्किलात आती हैं, पेश आती हैं सर, इस तरह का जब माहौल में आप लोग रहते हैं, इस तरह के हालात में जब आपको गुजर बसर करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। ਉਹਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, इधर अंदर आने को भी दिल नहीं करता? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ। यानी स्मेल, ताफुन, वो इस तरह के हालात होते हैं कि अंदर आने का भी दिल नहीं करता? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। हालात जो है वो बेहतर हो। ज़ाहिर सी बात है जी कि बेहतरी इस वक्त जो है वो हमारी ज़रूरत है, और बेहतरी लाई जानी चाहिए ताकि कम से कम बच्चों को खेलने की जगह मिले, बच्चों को सैर व तफरीह की जगह मिले, यहाँ के रिहायशियों को एक वॉकिंग ट्रैक मिले, यहाँ के लोगों को जो है वो एक फ़्रेश एयर मिले, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो हालात हैं तो हर शख्स से हमें जो है वो परेशान नज़र आ रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या समझते हैं आपके मुताबिक, आपकी राय इसमें शामिल करते हैं, समझते आप क्या हैं कि किस की नाअहलियों की सज़ा इस वक्त जो है वो आवाम को कर रही है? सर ये महकमे जो हैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा नाहल हो गए हैं, जिस वजह से कि ये पार्क का ये हाल हुआ है हमारे। इसके गिरदोनवाद जितने भी है सारे जो है ना सीवरेज का पानी निकल रहा है, इसके अंदर भी पानी सीवरेज का पानी आ रहा है सीवरेज का, तो ज़ाहिर बात है ये बीमारियों का बायस है बच्चों के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बना हुआ है। झूले वो टूटे पड़े हैं, हर चीज़ टूट फूट का शिकार हुई हुई है इधर, कि अदब तवज्जो की ज़रूरत है, जबकि इसके ऊपर कोई भी तवज्जो देने को तैयार ही नहीं है। कोई भी जिधर भी चले जाएं, जिस मर्ज़ी महकमे का दरवाज़ा खटखटा लें, मगर कोई भी है जो आके हमारी मदद करने को तैयार खड़ा हो। ना सीवरेज का कोई निज़ाम सेट हो रहा है, ना ये पार्कों का बुरा हाल हो रहा है। ये सारे टूट फूट का ऐसे शिकार हुए हुए हैं, जिसकी वजह से नशई जो हैं वो आके यहाँ पे उनके डेरे बने हुए हैं, वो बैठते हैं रातों को इधर,
खुदा न खास्ता कोई और नुकसान हो गया तब हम किसके पास आएंगे। सारी सी बात है, वो तो माशरे में इस चीज़ का फैलाव भी हो रहा है कि बच्चे जो चीज़ देख रहे हैं अपने आसपास होती हुई वो उसी तरफ जो है वो माइल हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि ये मेन गेट है और इस मेन गेट की एक साइड तो खड़ी है गेट की, दूसरी साइड नहीं है। तो ये चोरी हो गई है जब महकमे वालों ने खुद इसको कहीं उतार के रख दिया, गायब कर दिया। ये महकमे वालों ने इधर ही खुद ही हमने ही रखा हुआ है, अच्छा, अंदर ही पड़ा हुआ है। ये ताकि भी चोरी होने से बचे। चोरी होने से बच जाए। वैसे भी कई चीज़ें हैं जो चोरी हो गई, जो इधर पैप पड़े हुए थे पानी के, वो जो है वो नशे ले गए। कोई बंदा है ही नहीं है यहाँ पे, आता ही नहीं है कोई बंदा कि जो कि इसका ख्याल रख सके। उम्मीद है कोई बेहतरी की? बेहतरी की अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा ऐसा आया नहीं है जो बेहतरी कर सके कि जिसके पास जाके पार्क के लिए हम जाएं और वो इस पे तवज्जो दे, मगर ऐसा कोई बंदा अभी तक आया नहीं है। आप समझते हैं कि अभी तक ऐसा कोई नहीं आया जो आपके मसाइल का तदारुक कर सके? ऐसा कोई नहीं आया है, बस यही हाल है। हालात और सूरत हाल आपके सामने है जी। इस वक्त पार्क की जिस तरह के हालात हम आपको दिखा रहे हैं या सूरत हाल दिखा रहे हैं, ये वाकई एक तकलीफ़ दह बात है। तकलीफ़ दह बात है यहाँ के रिहायशियों के लिए, तकलीफ़ दह बात है बच्चों के लिए, तकलीफ़ दह बात है बुज़ुर्गों के लिए, जो ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ की उनको ज़रूरत है। वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो इस वक्त हमारे साथ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गौसिया पार्क में। ये भी पार्क जो है वो CC 141 में मौजूद है और इस पार्क की भी हालत जो है वो अबतर हो चुकी है। तकरीबन जो है वो ये दूसरा पार्क यहाँ पर जो हम विज़िट कर रहे हैं उसके हालात हम आपके सामने रख रहे हैं और जिस तरह के हालात हैं तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर भी बड़ा अफसोस होता है। सबसे पहले मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको दिखाए कि यहाँ पर जो है वो आई थिंक कोई यहाँ पर सिलाई वगैरह का काम हो रहा है और बड़े मज़े से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये लोग काम भी कर रहे हैं। इनको ना कोई रोकने टोकने वाला है ना इनको को मना करने वाला है, क्योंकि ये पार्क जो है वो आवाम की सैर व तफरीह के लिए बनाया गया है कि आवाम जो है वो यहाँ पर घूम फिर सकें, आवाम जो है वो यहाँ पर चल फिर सकें। दूसरा यहाँ पर जो है वो झूलों की हालात आपके सामने हैं कि झूले तकरीबन इस वक्त जो है वो टूट फूट का शिकार हैं और सेम वही सूरत हाल, सेम वही हालात आपको नज़र आएंगे। एक और भी मैं चीज़ आपको जो है वो दिखाना चाहूँगा, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो बिल्कुल इस तरफ जो है वो एक रेडी खड़ी हुई है और आई थिंक ये इदारे की तरफ से यहाँ पर इसमें गंद डाल के जो है वो खड़ी की गई है और इसको जो है वो वहाँ से निकाला भी नहीं गया और ना जाने कितने दिनों से जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। अब ज़ाहिर सी बात है कि साफ़ सफाई तो ना होने के बराबर है। फिर यहाँ पर जो ट्रैक बनाए गए हैं वो ट्रैक भी अबतर से अबतर सूरत हाल इस वक्त जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के कुछ रिहायशी मौजूद हैं, यहाँ आसपास कुछ जो काम करते हैं वो लोग मौजूद हैं। इनसे जो है वो हम बातचीत करके जानेंगे कि क्या वजह है, क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं और क्यों चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप रिहायशी हैं यहाँ के या कोई काम कारोबार आप? काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ करीब ही। हाँ जी। क्या हालात हैं, क्यों? ये ज़ाहिर सी बात है आप तो सारा दिन यहाँ पर जो कुछ होता होगा वो आप देखते रहते होंगे, क्या हालात हैं यहाँ? गौर नहीं को करदा जी, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਅਗਲੋਂ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। अच्छा, कोई किसी को आप मना करते हैं ਤੇ क्या? ਉਹ ਗਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਸਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਕੂੜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਿਆ ਉਲਟੋ। क्या कह रहे थे आप? ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ अच्छा, ਦੀ ये सफाई वालों की वो जो अभी दिखाई गई है रेडी, वो उन्हीं की तरफ से दिखाई ਸਫਾਈ। गई है। हाँ जी। और ये कितने दिनों से खड़ी है? ਇਹ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 3-4 दिनों से ऐसे वो गंद से भरी हुई खड़ी है। सफाई वगैरह नज़र तो कहीं नहीं आ रही, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि कोई 6 माह में भी एक मरतबा सफाई। ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਿਲਾਰੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਰਕ ਦਾ मतलब बाहर का कूड़ा उठाकर वो पार्क में फेंक रहे हैं। ਭਰ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਗਏ थे। ये देखें जी हालात, ये सूरत हाल कि अमूमन पार्क को साफ़ सुथरा रखा जाता है कि वो घूमने की जगह है। हमारे साथ भाई खड़े हैं, इनका यहीं पे कोई काम कारोबार है करीबी, वो बता रहे हैं कि बाहर से कूड़ा उठाकर वो अंदर इस पार्क में फेंका जाता है और ये ज़ाहिर सी बात है बड़ी एक अफसोसनाक बात है, बड़ी एक जो है वो अफसरदा कर देने वाली बात है और इदारों की कारकर्दगी पर सवाल निशान खड़े करने वाली बात है। आप लोगों ने ज़ाहिर सी बात है जब सारी चीज़ें आप अपनी आंखों के सामने होते देखते हैं, आप लोगों ने उनको नहीं रोका टोका, आप लोगों ने उनको नहीं कहा कि भाई इस चीज़ को सेट? हम रोकते हैं, वो कह रहे हमारा काम नहीं है। फिर मैं उन्होंने कहा, मैं ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं, बेल्जियम वाले का काम है। नहीं, साफ़ सफाई करना तो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो साफ़ सफाई ना करें लेकिन बाहर वाला कूड़ा उठाकर तो अंदर ना फेंके ना।
وہ منع کرتے ہیں, نہیں ہوتے, حکومت کے بندے ہیں یار, کوئی انہیں روکنے والی نہیں ہے. نہیں آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں آپ کو نظر آتی ہیں, ویسے یہاں پر نشئی وغیرہ ہوتے ہیں؟ ہاں جی, نشئی بھی بیٹھتے ہیں یہاں پر آ کے, بہت نشئی بیٹھتے ہیں یہاں پہ لوگ آ کے چرس بھی پیتے ہیں. اچھا ایسے رات کو, ہاں جی رات کو, تو یہ سب کیونکہ کچھ ہو. لائٹ نہیں نا ہوتی رات کو, یہاں پر اندھیرا بہت ہوتا ہے, اس لیے یہاں پر یہ کام بھی ہوتا ہے. اچھا پہلے لائٹس وغیرہ یہاں پر کوئی لگی ہوئی تھیں؟ نہیں ہے جی, لائٹ کیونکہ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਬਾਕੀ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਲੜਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਚਰਸ ਵੀ ਪੀਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਇੱਥੇ. یعنی ہر قسم کا جو ہے وہ غلط کام ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ. ہاں جی, ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਡੋਲਫਨ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ہے, ਬਾਏ ਟਾਈم نہیں, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ہے. ظاہر سی بات ہے, یعنی ادارے ایک کانسٹنٹلی اس چیز پر فوکس نہیں کر پا رہے ہیں کہ چیزیں وہ بہتر بنیں. ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਸ. ਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖੇਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ? بالکل ظاہر سی بات ہے نا, بچے نہیں ਦਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ 3-3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ نہیں گری جمع ہو جاتا ہے. بچوں کی تفریح کی یہ جگہ ہے, اور حالات یہ ہیں کہ اسی میں جو ہے وہ بچے نہیں آ سکتے, اسی میں جو ہے وہ بچوں کا آنا محال ہے. سر کیا صورتحال, کیا حالات دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں؟ سر وہ پانی ادھر کھڑا ہے, ادھر تفن پھیل رہا. ہماری انتظامیہ سے درخواست ہے کہ کچھ پارک کا خیال کیا جائے, کوئی لوگوں کی سیر و تفریح کا اہتمام کیا جائے, جس کے لیے یہ بنا ہوا ہے. تو یہ کوئی لائٹیں وغیرہ ہے, ان کا بھی اہتمام کیا جائے, چلو لوگ کوئی آسانی سے اس میں کوئی سیر و تفریح کر سکیں. ہماری یہی درخواست ہے. اچھا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو جالی لگی ہوئی تھی, یہاں پر جو ایک بارڈر لگے ہوئے تھے, یہ کہاں غائب ہو یہ نشئی لا کے لے گئے, لے گئے ہیں؟ لے گئے نشئی. کسے جی آپ قریب آ جائیں ذرا, کیا بات کر رہے تھے؟ ਜਾਲੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜ ਲਈ ਸੀਗੀ, 2 ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ. ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਫਾਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ. 2 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਗਏ ਨਾ. یعنی تقریباً 4 یہاں سے اتاری گئی ہیں. یہ جو یہاں پر جالیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں, ایک ہمارے پاس پڑی ہیں, 2 پڑی ہیں, 2 پڑی ہیں, 2 لے گئے ہیں. یار یہ پھر ادارے چیز بناتے ہیں, ان کی مینٹیننس کیوں نہیں رکھ پاتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ شہر کے بیچوں بیچ یہ جگہ موجود ہے, کروڑوں روپے کی یہ پراپرٹی ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہاں پر تعمیر بھی ہوئی ہے, یہاں پر جو ہے وہ چیزیں بھی, بجٹس بھی آئے ہیں, بجٹ آئے, تعمیر ہوئی, پراپرٹی ہو گئی. یہ پھر وہ عوام کا پیسہ ضائع کرنے والے ضائع کر رہے ہیں, سب پیسہ ضائع کر رہے ہیں. آگے مالی وغیرہ آتے تھے, وہ تھوڑی بہت صفائی کر جاتے تھے. تقریباً اب 3-4 ماہ ہو گئے, کوئی مالی نہیں ادھر آیا. اتنی زیادہ گندگی ہے, یہ اب گاز دے کے کتنی زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آگے تو وہ جو آتے تھے صفائی کے کہیں کوئی حالات بہتر نہیں ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر رہائشی ہیں یہاں پر, کام کاروبار کرتے ہیں؟ میں ادھر رہائشی ہوں, اور سامنے ہمارا اسکول ہے, اور اس کے علاوہ بھی ساتھ بھی اسکول ہے. اچھا یہ یہاں پر 2 اسکول ہیں. یہ اسکول ہے یہاں پر, یہاں اور پر جو بچے پڑھ رہے ہیں, وہ اپنے سامنے نشہ ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں. بالکل سب کچھ وہ اپنے سامنے ہوتے جو ہے وہ ہر قسم کی برائی بھی دیکھ رہے ہیں. کتنا برا اثر بچوں پر اس وقت؟ ظاہری بات ہے بچوں کے اوپر, یہ کیونکہ یہ بچے بیلڈ ہو رہے ہیں ابھی, اور یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جو آتے ہیں, وہ ان کے اوپر بہت برا امپیکٹ آ رہا ہے, اور یہاں سے تعفن پھیل رہا ہے. یہاں سے بالکل جو آپ لوگ ڈینگی کے لیے گورنمنٹ بہت زیادہ کہہ رہی ہے کہ ڈینگی پر کنٹرول کیا جائے, وہ تو یہاں پر سیدھا سا پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, باؤنڈری وال کوئی نہیں ہے, صفائی کا کوئی خاص نظام نہیں ہے. یہاں پر اچھی خاصی وہ جو ہے وہ منشیات کا اڈا سا بنا ہوا ہے, سمجھ لیں. ٹھیک ہے, یہ تو پارک ہے بچوں کی سیر و تفریح کے لیے, اس کی یہ حالات ہے, تو باقی ہم کیا ایکسپیکٹ؟ تو یہ تو آپ کے سامنے ہے, ارد گرد ایریا آپ کو خود ہی نظر آ رہا ہے. یہاں پہ حالانکہ یہ جو پارک ہے یہ پی ایچ اے والوں کو اچھی خاصی ارننگ دے رہا ہے. یہاں پہ اچھی بہت زیادہ یعنی کہ شادی کے فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں, اٹینڈ کافی وسیع ایریا ہے یہ, میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر وہ جو انکم آتی ہے, وہ جو پیسہ آتا ہے, وہ جیبوں میں ڈال, وہ سمجھ سے باہر ہے, کدھر جا رہا ہے. کوئی یہاں پر فیسلٹی نہیں دی جا رہی کسی بھی قسم کی بھی, کوئی یعنی کہ یہاں پر کوئی مالی کا ارینجمنٹ نہیں ہے کسی کا بھی. یہ آپ لوگ گھاس دیکھ لیں کیا حال ہے گھاس کا, یہاں پر بندہ چل ہی نہیں سکتا, ویسے ہی ڈرتا ہوگا. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت فیملیز آتی تھی یہاں پر, تھوڑا سا ایکسرسائز وغیرہ کے لیے کوئی انوائرمنٹ تھا, بہتر تھا. لیکن اب تو یہ تقریباً 5-6 ماہ سے اب جو ظاہر سی بات ہے حالات ہے, یا جس طرح کی صورتحال ہے, وہ اس پارک کی ابتر حالات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہمیں نظر آتی ہے. ہم سے بھائی جو یہاں کے تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ بھائی یہاں پہ 2 اسکول بھی ہیں جہاں پر بچے جو ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور انہی کے سامنے جو ہے وہ یہاں پر نشہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, نشے کا استعمال بھی بے دریغ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کتنا برا امپریشن جو ہے وہ اپنے بچوں کے ذہنوں پر, دماغوں پر چھوڑے جا رہے ہیں. اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان, اداروں کی اور موجودہ ظاہری سی بات ہے جو نمائندگان ہیں ان کی کارکردگی پر سوال. وقت ایک مختصر سے بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے.
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 141 के पार्क की जो खस्ता हालत है, जो मसाइल हैं, वो आपने सुने हैं और किस तरह ये मसला जो है वो लोगों के लिए दर्द सर बन चुका है। इस वक्त हमारे साथ मलिक अदनान उल हक साहब मौजूद हैं, जो साबिक चेयरमैन हैं CC 141 के। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि जो असल हालात ख़राबी की तरफ गए वो उसमें किस गवर्नमेंट का ज़्यादा किरदार था, किस गवर्नमेंट में ज़्यादा हालात जो है वो अबतर हुए। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है इनसे हम जानेंगे कि कितना ये ज़रूरी समझते हैं कि निचले लेवल तक या लो लेवल तक या निचले तबके से जो चेंज या बेहतरी शुरू होती है वो बल्दियाती इदारों के ज़रिए जो है वो कितनी ज़रूरी है। सर शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त देने का। आपके घर के बिल्कुल सामने ही ये पार्क मौजूद है और ये हालात हुए हैं। आपके तो ज़ाहिर सी बात है वैसे भी लोकल गवर्नमेंट में जब थे या लोकल गवर्नमेंट जब फाल थी या इलेक्शंस करवाए गए तो उस वक्त कुछ हालात को बेहतर थे, आपने को बेहतर करवाने की कुछ कोशिश की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप सिटी 41 का मशकूर हूँ कि जहाँ भी शहर के अंदर मसाइल के मामलात में आपने हमेशा अवामी जो तरजीहात को आपने बिल्कुल उजागर रखा है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो अभी आपने बात की बल्दियात से शुरू करते हैं, तो बल्दियात चूँकि जब 2015 31 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन हुआ, उसके साथ साथ हमारी ही गवर्नमेंट थी, तो उसमें हमें उन्होंने एक साल तो बिल्कुल हमारी हलबरदारी नहीं हुई, मेयर साहब की हलबरदारी नहीं हुई, तो वो 2016 हमारा बिल्कुल ज़िया गया। और 2017 1 जनवरी को हमें फ़ाल किया गया और फ़ाल करने के बाद हमें महदूद से इख्तियारात दिए गए, जो कि हम मतलब जिस तरह लोगों की तवक्कुआत थी उस पर हम बिल्कुल पूरा नहीं उतर सकते थे। लेकिन फिर भी हमने अपनी औकात से बढ़ के हमने जहाँ पे भी अपने रिलेशनशिप से जो है वो हमने लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश भरपूर की है। और उसके बाद बदकिस्मती से फिर 2018 में आपको पता है कि बल्दियात पे जो शब खून मारा गया, ये जो इमरान खान की जो हुकूमत आई तो उसमें बल्दियात को हमें 1.5 साल का अरसा भी पूरा काम नहीं करने दिया गया। तो 1.5 साल के बाद जो है वो सारा आप देखें कि बल्दियात ख़त्म कर दी गई और सारे सिस्टम को जो है वो डिरेल कर दिया गया, जिसकी वजह से आप ये समझ रहे हैं कि अवामी मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। और उसके बाद 3.5 साल इनकी गवर्नमेंट रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये 3.5 सालों में हमारे शहर की बर्बादी में इनका इमरान हुकूमत का पूरा हाथ और किरदार रहा है। और पार्कों की तबाही के और दीगर जो आपने रोड्स देखे हैं, जितने लिंक रोड मोटरवे के साथ हैं, सब की तबाह बर्बादी के यही ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि जब इन्होंने तिनका तक नहीं तोड़ा, कोई किसी को काम नहीं करने दिया, इन्होंने फ़ंड रेजिंग नहीं हुई, सिर्फ अपनी जेबें भरी गई हैं उस वक़्त के हालात से। और अब तक देखें कि कभी भी मैंने आपने एक बात की कि मेरे घर के सामने ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको दोबारा से सफ़ेदे लगे हुए थे, छतरियाँ लगी हुई थी, इससे भी अबतर हालत थी। जब हमने इसको अपनी पॉकेट मनी से और अहले महल्ला की दोस्तों की मखैर हजरात की मदद के साथ हमने, तो PH ने तो हमें फिर भी कोई इतना किरदार अदा नहीं किया था, तो लोगों ने इस पार्क को दोबारा अपने पाँव पे, ये जो पौधे आज नज़र आ रहे हैं आपको, इनको बच्चों की तरह दोस्तों ने, लोगों ने मेहनत की है। और इसके साथ साथ ये देखें कि PHA की अब तक ये ढठाई का अमल ये है कि मेरा ख्याल कि आपके तवस्सुत से और इस पे एक आधा और प्रोग्राम हो चुका है, तो फिर भी जो अभी DG साहब जो हैं अब्दुल कादर शाह को मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ये ऐसी पार्कों की ग्रीन बेल्ट की हालत ज़ार पे उनको मुअत्तल किया। हम फिर भी ये समझते हैं कि उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि ऐसे उन्होंने जो है वो ज़ाहिर सी बात है नाकिस कारकर्दगी दिखाने पर जो है वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है। ये तो ज़ाहिर सी बात एक एलिमेंट है, ये एक फैक्टर है जिस पर डिबेट करना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ही मैं इस चीज़ की तरफ भी आऊँगा कि 2018 के बाद जो है 2018 में अगस्त के महीने में चूँकि इमरान खान साहब इक़्तिदार संभालते हैं और उससे कबल बानी PTI के दौर से कबल हालात बेहतर थे। जैसे जैसे ही इन्होंने आपके मुताबिक संभाला तो उस वक्त जो है वो इदारों को फ़ंड्स देने जो है वो कम कर दिए गए, बंद कर दिए गए। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह
ये जो 18 का इलेक्शन हुआ, इससे पहले गवर्नमेंट पंजाब बड़ा अच्छा काम कर रही थी और उसके अंदर जनाब हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी साहब हमारे साबक MNA 103 और मलिक अब्दुल रज़ाक साहब, अभी चूँकि उनके पहले भाई थे मलिक नवाज़ साहब PP 118 से, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कसीर तादाद में यहाँ पे गलियों में, सड़कों पे, पार्क्स पे, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये हाइट्स दोबारा पार्क की दीवारें बनी हैं, तो ये सारी ये 2018 से पहले के काम हुए हुए हैं। 2018 के बाद जो भी इनकी टीम आई है, MNA MPs आए हैं, तो महकमे तो तब से रो रहे हैं, तब से कह रहे हैं कि जी हमारा तो इन्होंने अपना तो खुद बेड़ा गर्क किया है, तो साथ साथ इन्होंने अदारों की भी तबाही और बर्बादी के यही ज़िम्मेदार हैं कि फ़ंड नहीं दिए गए, मामलात नहीं उनके सामने रखे गए, अमला जो है कभी उनका पूरा नहीं है, कभी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। चलें ये एक सेपरेट इशू है। देखिए उसके बाद से अब भी गवर्नमेंट आई है, 1 ईयर तकरीबन मुकम्मल होने को हैं। पिछली भी गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की थी, लेकिन अब जो हालात हैं, अब महकमों की ये डठाई है। देखिए मैंने पहले भी बात आपके तवज्जो से की थी कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा अगर फ़र्द वाहद वो ख़ुद एक मेहनत कर रही हैं, साफ़ सुथरा पंजाब के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं, तो आगे जो उनके साथ ये जो लोग हैं, चाहे वो DGPH है, MD वासा को देख लें, इस वक्त आधा शहर जो है वो पानी में डूबा पड़ा हुआ, आधे से भी ज़्यादा। ये क्या इनकी नलायकी नहीं है? इन लोगों को तो कोई सीटों पे बैठने के काबिल नहीं है, इनको तो बैठाना भी नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये सीटों पे और दारों के नाम के ऊपर दब्बा हैं। और जब पार्क्स के अंदर देखें, पार्क्स से तो सफाई के लिए मुख्तस किए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरे घर के सामने है, किसी के घर के सामने भी है, खुदा की कसम आज के दौर में ये जन्नत है। जिस तरह के हम माशरे में रह रहे हैं और जिस तरह के हमारे यहाँ पे एक हाउसिंग स्कीम है, उस लिहाज से कंजस्टेड एरिए हैं, शहर की आबादी के अंदर ये सेहत और सफाई की फ़ज़ा होना, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है। अब आप नेमत को देखें, एक तरफ हम कह रहे हैं कि दरख्त लगाएं, वो दरख्त हम लगा नहीं रहे, दूसरी तरफ जो लगे हुए हैं उनकी तबाही बर्बादी के भी हम पूरे ज़िम्मेदार हैं। वो जो नेमत आप लोगों के लिए थी, ये जो नेमत आप लोगों के लिए बनाई गई थी, वो इस वक्त आप लोगों की जहमत में तब्दील हो चुकी है। और क्या हालात और ख़ास तौर पर सोसाइटी पर या मुआशरे पर इसका क्या असर पड़ रहा है? जब हमसे पहले हम एक भाई बता रहे थे कि भाई वो दिन रात वहाँ पर नशे बैठे हुए होते हैं, वो नशा कर रहे होते हैं, और पार्क के अंदर जो है वो हर तरह की जो है वो अब कह लें कि गलत एक्टिविटी हो रही है, जिसको बच्चा देख रहा है, जिसको एक नौजवान देख रहा है, एक टीनेजर देख रहा है, डायरेक्टली उसके माइंड को हिट कर रही है। जी देखें, गुजारिश ये है, ये हकीकत है। जब देखें एक अदम तवज्जही की वजह से पार्क के अंदर आप लोग नहीं जाएंगे, आप कहाँ पे लोग जाएं ना जी। पार्क्स होते हैं आपकी इंटरटेनमेंट के लिए, आपके ज़हनी सुकून के लिए, और आपके मैं ये समझता हूँ बच्चों के ज़हनी सुकून के लिए, सेहत और सफाई के लिए। अब जो गवर्नमेंटी हालात हैं, महंगाई है, सिस्टम है, तो मैं समझता हूँ कि लोग अगर एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए कहाँ पे जाएंगे? ये पार्क्स जब तबाही हाली का शिकार हैं, वहाँ पे आप अभी बुज़ुर्ग बता रहे थे, हकीकत भी यही है कि इतना ताफुन है पार्कों के अंदर। पानी बारिशों की वजह से आप देखें कि जोहड़ का पार्क मंजर पेश कर रहे हैं। इस ताफुन में लोग इंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे? अब ना उनको इंटरटेनमेंट जो है वो बाहर सुकून है, ना उनको बाहर मिल रही है। अगर वो यहाँ पे आके अगर सूखा सांस लेने के लिए चंद लम्हात जो हैं वो अपने गुजारने के लिए पार्क्स के अंदर आते हैं कि चलें जी ये बंदा ज़हनी तौर पे जो डिप्रेशन का मरीज़ बनते जा रहे हैं, वो डिप्रेशन को क्लियर करने के लिए अगर वो पार्क्स में आते हैं तो वहाँ पे तो पहले ही ताफुन है, इतनी बदबू है, सांस घुटता है, तो कहाँ पे वो जाएंगे? मुझे बताएं। ना बैठने को जगह है, ना कोई आपको ग्रास रोड पर कोई चीज़ नज़र आ रही है, ना ही ऐसी कोई अदर चीज़ें वहाँ पे। अदर चीज़ें ज़ाहिर सी बात है। इसके अलावा सिर्फ ना ये पार्क बल्कि इससे मुल्क का एक और पार्क भी जो है वो भी ज़ाहिर सी बात है खस्ता हाली का शिकार है। उसमें भी जो है वो बिल्कुल इसी पार्क की तरह के अंदर के मनाजिर है। तो ये एक बड़ी पैमाने पर ये ज़ाहिर सी बात है लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं। ये तो हमने एक तरफ बात की है कि इदारों ने इतनी बड़ी आबादी के इस एरिए को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया। अब दूसरी तरफ ज़रा यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ भी आया जाए ना, उनसे भी पूछा जाए कि भाई आपकी तो ज़िम्मेदारी थी,
آپ کا تو رائٹ بنتا تھا کہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہمیں، تو پھر آپ نے وہ کیوں نہیں سر انجام دیا؟ دیکھیں جی، یہاں پہ میری یونین کونسل کی میں بات اگر کروں تو یہاں پہ 4 پارکس ہیں. سب سے بڑا یہاں پہ پارک ایک شہباز شریف پارک ہے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں 1.5 فٹ جو ہے وہ گھاس کھڑی ہوئی ہے. اور ابھی معلوم پڑ رہا ہے کہ اسے کھولا گیا اور دوبارہ جو ہے وہ اسے کلوز کر دیا گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس موسم میں کسی نے جا کے موذی جانور نکل رہے ہیں، معاملات ہیں، یہ حبس کے موسم میں وہاں پہ اتنے تعفن میں کس نے جانا ہے؟ تو وہ ساری 1.5 فٹ اس کی گھاس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی آپ نے فصل بیجی ہے، فصل کی جو مطلب کٹائی نہیں ہوئی. تو وہ ساری چیزیں دیکھیں، اس پہ حاجی اکرم انصاری صاحب اور ملک نواز صاحب، خواجہ اسلام صاحب بھی اس وقت ہمارے MPA تھے. تو انہوں نے دیکھیں ایک ایشیا کی سب سے بڑی آبادی کو شہباز شریف صاحب کے نام سے، جو آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کے نام سے اس پارک کو منسوب کیا، یہاں پہ لوگوں کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا. وہ شہباز شریف کے نام سے منسوب پارک اس وقت تباہی بربادی کا شہباز شریف سے منسلک نام سے منسلک پارک جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. نہ جانے حالات کب بہتر ہوں گے، لوگوں کو کب جو ہے وہ سکون کا سانس ملے گا. امید یہی کی جاتی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے، حالات بہتری کی طرف جائیں گے. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.